الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح صدقت یا سیدی یا رسول اللہ اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو میرے ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان سے موادت کیوں اتنی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو، آپ ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت رسول یعنی کہ ہمارے پیغمبر کی اہل بیت، ہمارے پیغمبر کے گھر والے، یہ ہمارے نبی آخر الزماں کے گھر والے ہیں۔ ان سے محبت یہ تو سب سے ضروری چیز ہے۔ یہ بتانے کی تو ہمیں کہہ لیں اس چیز کی وضاحت کیا کریں کہ جی اہل بیت سے محبت، اور یہ تو ہمارے رسول کی خاندان ہے، ہمارے رسول کی فیملی ہے، ہمارے رسول کا گھر بار ہے، اور خصوصاً یہ وہ لوگ ہیں جو سردار دنیا و آخرہ، جو دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، جو اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور یہ وہ مقدس گھرانہ ہے جو میں پہلے بھی پچھلے بیان میں آیات قرآن سنا چکا ہوں کہ کبھی ان کے لیے آیات تطہیر اتر رہی ہیں اور کبھی ان کے لیے آیت مباہلہ اتر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پورا قرآن و حدیث حقیقت میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن و حدیث بھری پڑی ہیں۔ میرے نبی نے ساری زندگی اہل بیت کی شان و عظمت کے ڈنکے بجائے ہیں۔ اللہ نے حضور کی شان کو بیان کیا، حضور نے اپنی اہل بیت و صحابہ کی شان کو بیان کیا۔ تو جن اہل بیت کی میں آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں اور اب بار بار ان کا ذکر خیر کر کے اپنی اور آپ سب کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے ہم جانتے ہیں اہل بیت رسول کی محبت کو ہمارے نبی نے کیوں اتنا لازم و ملزم کہا۔ سب سے پہلے تو جو نبیوں کا سردار ہمارے آقا مولا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے۔ اتنے پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سارے پیغمبران خدا کو جتنی اذیتیں پہنچی، تکلیفیں پہنچائی گئیں، وہ اکیلے میں محمد کو دی گئیں۔ میں نے اتنی مشکلات سے اللہ کا دین پھیلایا کہ لوگوں نے میرے راہ میں کانٹے بچھائے، میرے رستے میں لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوششیں کی، معاذ اللہ، میری گستاخیاں کی، کسی نے اوجڑی پھینکی، کسی نے کوئی گستاخی کی۔ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید کیے گئے، گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی۔ ایسے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے اللہ کا دین، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت لوگوں کو بیان کی۔ تو جو اتنی مشکلات میں جو پیغمبر، جو رسول، جو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کا دین پہنچائے، تو ان کی اہل بیت ان کی قدم با قدم ان کے مامن اور مددگار بنے، اور پھر ان کی اہل بیت پر جو ظلم ڈھائے گئے دین پھیلانے میں، یہ ساری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ان کی اہل بیت، جو میں پھر بتا دوں آپ کو، دنیا آخرت کے سردار اور بادشاہ ہیں، ان کے اوپر جو ظلم لوگوں نے کیے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس لیے بار بار اپنی امت کو کہا، اے میری امت، میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے سے اللہ سے خوف کھانا، میرے بعد میری اہل بیت کو نہ ستانا، میری اہل بیت سے مودت رکھنا، محبت، پیار، عشق، اور عشق سے اوپر کا درجہ ہے مودت،
यानी कि मवद्दत कहते हैं अपने आप से ज्यादा, माल जान से ज्यादा, अपने जर जमीन से ज्यादा, बल्कि पूरे जहान से ज्यादा मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखना, मेरी अहले बैत की कदर करना, मेरे बाद मेरी अहले बैत की इज्जत करना, मेरे बाद मेरी अहले बैत को ना सताना। और कभी मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बाद मेरे अली से प्यार करना, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। और ये हदीस में तिरमिज़ी में आती है और भी कई हदीसों में मौजूद है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से क्या फरमाते हैं कि मैं नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर गया। अबू सईद कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी ने मुझे पूछा कौन है जो बाहर मिंबरों पर हजरत अली को बुरा कह रहे हैं। जी कहते हैं जी हुक्म हुआ है खलीफा वक्त का कि इनको बुरा कहा जाए माज अल्लाह हजरत अली को। तो उम्मुल मोमिनीन गालिबन हजरत उम्मे हबीबा थी या हजरत मैमूना थी, तो फरमाती हैं मैंने खुद रसूल अल्लाह अपने शोहर से सुना कि मेरे नबी ने फरमाया जिसने अली को गाली दी उसने मोहम्मद को गाली दी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मोहम्मद से मोहब्बत की। तुझे कौन लोग हैं जो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। इतना मेरे नबी ने इन अहले बैत, और यहां तक फरमाया जिसने मेरी फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मेरी फातिमा की कदर की उसने मैं मोहम्मद की कदर की, जिसने इमाम हसन और हुसैन इन दोनों शहजादों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिन्होंने इनसे बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और मेरे भाइयों अहले बैत की मोहब्बत ईमान की कसौटी है, अहले बैत की मोहब्बत ईमान की दलील है। वो बेईमान है जिसको अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। ये वो अहले बैत का नाम सुनकर चूनो चढ़ा करता है, गलत कमेंट्स देता है, या अपनी तरफ से उनके नामों के ऊपर। मेरे दोस्तों खुदारा हजरत अली ने नहजुल बलाग अपने खुतबे में, शायद सफीन का ये खुतबा है जहां पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हैरान हूं उन लोगों पर जो बाद में मेरे मिंबर पर बैठेंगे और हमारे नाम का नाम लेकर अपनी तबलीगें जारी करेंगे, इज्जतें कमाएंगे, और बाद में वो हम पर ही बकवास करेंगे, भौंकेंगे, वो हमारे ऊपर एतराज करेंगे। मेरे भाइयों अहले बैत की मोहब्बत इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मिसली अहले बैत। लोगों सुनो, मेरी अहले बैत की मिसाल ऐसे है जैसे नूह अलैहि सलाम की कश्ती थी, नूह की कश्ती थी। मेरी अहले बैत ऐसे है जैसे नूह की कश्ती थी, मेरी अहले बैत ऐसे है जैसे नूह की कश्ती थी। यानी कि जो जो नूह की कश्ती में सवार होता गया वो अल्लाह के अमन में आता गया, वो अल्लाह की रहमत में आता गया, वो पैगंबर के दामन में आता गया, वो महफूज होता गया। मेरे नबी ने मिसाल देकर फरमाया ओ लोगों मेरे बाद अली से मोहब्बत रखना, हसन से मोहब्बत करना, हुसैन से मोहब्बत करना, फातिमा का अदब करना, मेरी औलाद का एहतराम करना, इनको ज़िबा ना करना, इनको सताना ना, इनका कत्ल ना करना, इनका अदब करना, इनसे मोहब्बत करना, इनका दामन पकड़ लेना, इनका नाम सुनकर सुबहान अल्लाह कहना, इनका नाम सुनकर दुरूद पढ़ना, इनके नक्शे कदम पर चलना। मेरे लोगों, मेरे नबी ने फरमाया लोगों मेरी उम्मत मेरी अहले बैत से ऐसे मोहब्बत करना कि आप उनके दामन से ऐसे वाबस्ता हो जाएं कि ऐसे वाबस्ता हो जाएं कि मेरे इमाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़े अस्सलमान मिन्नी अहले बैत, सलमान भी मेरी अहले बैत में से है। जो सलमान हजूर के घर से वालों से इतनी मोहब्बत करे मेरा नबी उसको अपनी अहले बैत बना लेता है। इतनी मोहब्बत करें। हजरत अली शेर खुदा अलैहि सलाम कि जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अली जो मिन्नी व अना मिनल अली, मैं अली से हूं, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। कितनी बड़ी ये हदीस है, अगर किसी को समझ आ जाए रोले ही खत्म हो जाए। ये जो कहते हैं हम अली को नहीं मानते, या शान कम बयान करें, ज्यादा बयान करें, तावीले ना करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें, या अली के मुखालिफिन को सच्चा कहें और माज़अल्लाह ऐसे वैसी तावील। मेरे दोस्तों याद रखें, मैंने एक हदीस शरीफ सुना दूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया अली से मोहब्बत रखेगा मगर मोमन, अली से बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। बात खत्म हो गई। अब अली का नाम सुनकर जो खुश हो जाए समझे उसके अंदर ईमान है,
और अगर अली का जिक्र सुनकर, उनके फजाइल सुनकर आप दलीलें मांगें और कहीं कहाँ लिखा है और अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह गलत उनके बारे में कमेंट्स दे, तो अपने ईमान की अभी खबर लें। अभी हम पक्के मुसलमान नहीं हुए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया है मोमन अली से मोहब्बत करेगा और मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखेगा। और ये भी एक बुग़्ज़ है कि उनकी शान सुनकर हमें खुश होना चाहिए, ना कि ना खुश होना चाहिए। जो ना खुश है एक बुग़्ज़ है। तो अहले बैत रसूल की शान व अज़मत सुने, उनके मकाम मरातब को बयान करें। जो भी कोई आलिम दीन बयान करे, कोई पीर साहिबान उनकी अहले बैत का मुकाम बयान करे, उनको सुने, लाइक करें, पसंद करें, अपनी और अपनी आखिरत को ठीक करें। और जो भी कोई, चाहे वह पीर हो या कोई मौलवी हो, अगर अहले बैत रसूल के बारे में गलत बात करता है, हमारा उससे हमेशा के लिए बाइकआउट है। हम ना उसको आलिम दीन मानेंगे, ना उसको पीर मानेंगे। हमारे लिए पीर भी वो है, आलिम दीन भी वो है जो अहले बैत के रसूल के दर का और अहले बैत रसूल के दर का गुलाम है। उस दर का हकीर फकीर नहीं जब तक बन जाता, हम उसको कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, यूट्यूब पर जो हजारों लोग अहले बैत रसूल के बारे में कोई ना कोई हजूर के घर बार के बारे में गलत बात करते हैं, ऐसे लोगों को ना सुने। इनके सुनने से भी आपका ईमान खराब हो जाएगा। उनको लाइक करें, पसंद करें जो अहले बैत महबूब की शान बयान करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की, अहले बैत की, सहाबा की, औलिया अल्लाह की अजमत बयान करते हैं। जैसा कि हमारे दूसरे चैनल साईं महबूब पीर, जो ये फकीर हकीर चला रहा है चैनल, उस पर हम औलिया अल्लाह का तस्करा करते हैं। और इस चैनल पर जिसका नाम है शान अहले बैत, तो इस शान अहले बैत पर हम बयान करेंगे कि जितने भी दुनिया में वली, गौस, कुतुब, दाल, दरवेश, नुकाबा, नुजाबा, नकीबुल अशराफ, वली, सुल्तान, सुल्तानुल फुकारा, जितने भी दुनिया में ये वलायत के दर्जे और मुकामात है, ये सारे हजरत अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जो वलियों के सरदार हैं, उनके जूती से मिलते हैं, उनके कदमों से ये मरातब मिलते हैं जो ये हम बयान कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत इंशाअल्लाह बयान करते रहेंगे। अपने नाज़रीन को अहले बैत की मोहब्बत, और अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से आज़ादी है। अहले बैत की मोहब्बत मोमन की निशानी है। अहले बैत की मोहब्बत ईमान वाले की निशानी है। अहले बैत की मोहब्बत अली के मुहिब्बों की निशानी है। अहले बैत से मोहब्बत नबी पाक के आशिकों की निशानी है। अहले बैत से मोहब्बत जन्नतियों की निशानी है। नबी पाक की अहले बैत से मोहब्बत अल्लाह के महबूब बंदे होने की निशानी है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे दोस्तों, हम अहले बैत रसूल के शान व अज़मत का डंका बजाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। हर उस बंदे को जिसको अली से, अली की याद से बुग़्ज़ है, उनको हम इंशाअल्लाह अहले बैत रसूल का वो मर्तबा कुरान और हदीस से बयान करेंगे। इंशाअल्लाह उसकी आंखें खुल जाएंगी। तो मैं अपने नाज़रीन को, मेरे दोस्तों, यही बात बताना चाहता हूँ, इस चैनल को सुनिए, पसंद कीजिए और लोगों को बताइए कि अहले बैत रसूल का, हजूर की फैमिली का, हजूर के खानदान का मुकाम और मर्तबा क्या है। और हम मोमन नहीं हो सकते जब तक अहले बैत रसूल से वालिहाना मोहब्बत नहीं करेंगे, उसके हम नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, हम मोमन नहीं हो सकते। मोमन वो है जो अहले बैत रसूल का दामन पकड़े और फिर उनके नक्शे कदम पर चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए, आले मोहम्मद, आले अली की गुलामी अता फरमाए, और क़यामत के दिन हमें आले मोहम्मद की कुर्बत में जन्नत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।